स्टार्ट कर लें। जी सर। चलो, कल कहां तक करे थे बेटा हम लोग? Am I audible to everyone? Yes, sir. यस सर। कल कहां तक करे थे, कुछ आइडिया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करे थे शायद, नहीं? Yes. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? U is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by your R, isn't it? How do you calculate the number of pairs? बोला था मैंने, number of pairs is calculated by the formula n is equals to n into n minus 1 divided by your 2, है कि नहीं? Yes, sir. Okay, चलो, let us try to start today. फरिया रिकॉर्ड कर ले रहे बेटा? जी सर कर रही हूँ। ओके चलो, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल represented by letter capital V. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल represented by letter capital V. It is a scalar quantity beta. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. So while solving problems we must use sign of charges. यानी अगर चार्ज को नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव चार्ज ले तो पॉजिटिव लेना है, क्योंकि this is a scalar quantity, so sign of the charges are mandatory while doing the numerical. So electric potential is a scalar quantity. इसका डेफिनेशन देखो कैसा डिफाइन करते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन देखो, potential, a potential is the potential energy per unit charge. So what is the potential? Potential is nothing but what? Potential energy per unit charge. Okay, so हम लोग पोटेंशियल किसमें डिफाइन करते हैं बोला था कल मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड में. So the potential at any point, the potential at any point in an electric field, is given as, बताओ यहाँ पर देखो पोटेंशियल कैसे लिखता हूं बोला मैंने? कैपिटल V. V is equals to potential energy per unit charge. Potential energy is nothing but work done. So work done V W by your Q लिख सकते हैं, या एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, U by your Q. Okay ना? So U is equals, how much right now? Potential energy U is equals to
electric potential into charge of your q part of relation. So ये हो गया relation between the electric potential and as well as of your potential energy. So what is an electric potential beta? Electric potential is nothing but of your potential energy per unit charge. यहाँ देखो u is nothing but energy per unit charge. So v is equals to energy by charge part of relation. कोई इसका यूनिट बता सकता है क्या बेटा? कोई इसका यूनिट बता सकता है क्या? देखो, energy is measured in joules, energy is measured in joules, charge is measured in your coulomb. So it is Coulombs. nothing but 1 joule per 1 coulomb. This 1 joule per 1 coulomb is known as 1 volt, represented by letter capital V. ठीक है, 1 joule per 1 coulomb कितना है बेटा? 1 volt. 1 joule per 1 coulomb is equals to 1 volt. So I hope everyone is clear with the potential definition. The potential is nothing but potential energy per unit charge. So potential का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है अपने पास, U is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. ये हम लोग कल कितना लिखे थे? 1 by 4 pi epsilon naught into A capital Q small q divided by R. ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, isn't it? Two charges, Yes, sir. Q1 Q2 भी ले लो या capital Q small q भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हेलो ठीक है, सर. हाँ बेटा, सर मैं आसिफ बात कर रहा हूँ. हाँ बोलो आसिफ. वेटिंग रूम कुछ एनेबल करे क्या बच्चों को आने के लिए? डिसेबल करे तो भी आ रहा हो बेसिकली, मैं देख रहा हूँ. हाँ, ओके, आप सेटिंग में जाइए सर. वो इससे पहले करा था मैं, लेकिन फिर वैसे मीटिंग हाँ, सेटिंग्स में गया. वेटिंग डिसेबल कर दो, आ जाते बच्चे पूरे डन. ठीक है ना बेटा? So what is an electric potential beta? Electric potential is a scalar quantity. So while solving the problems, we must use the sign of your charges. Potential energy कैसे represent करते हैं हम लोग? U is equals to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q small q divided by R. How do we calculate the number of pairs? N is equals to n into n minus 1 divided by 2 part of relation. So definition देखो इसका, the potential is nothing but potential energy per unit charge. Potential energy per unit charge. So V is equals to U by Q, or U is equals to V into Q. इसका यूनिट क्या है बेटा? जॉल्स पर कूलम. 1 जॉल पर 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट. 1 जॉल पर 1 कूलम इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1 वोल्ट. अभी हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से सुनो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है. एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है बेटा? E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q by R square. कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. मान के चलो यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पूरा भरा हुआ है. So somewhere I am taking a point, मान के चलो I am taking some point here right now. This is a point P which is at a distance of right now. इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस मान के चलो D है. ये चार्ज के वजह से जो है ना, पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी जगह से निकलेगी. बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी बेसिकली ऐसा निकलेगी. सो ऐसा स्टेट में भी जाएगी. सो इट विल बी ट्राइंग टू गो इवन इन दिस डायरेक्शन. ऐसा भी जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे की तरफ जाएगी, फिर इस तरह से जाएगी, पूरी जगह जाएगी बेसिकली. ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा एक स्फीयर बनाएगा. उसके अंदर हम लोग ने एक पॉइंट चार्ज लिए हुए बेसिकली. So I'm taking a point charge P. ये हो गया point charge P particulation which is at a distance of your D. Now I need to calculate the electric potential due to a point charge. This is a point charge at a point P particulation. अब देखो ये point P कहाँ तक लेके जा सकता हूँ मैं? इंफिनिटी तक जा सकता हूँ. So मान के चलो इंफिनिटी फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन ये है. तो मैं हम लोग को कैसे लिख सकता हूँ? देखो, energy at your point P minus energy at your infinity must be equal to capital Q small q divided by 4 pi epsilon naught into r. कल डिराइव करते वक्त मैंने ऐसे लिखा था. ये पॉइंट P पे होना, रेफरेंस के पास, इंफिनिटी के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना मान के चल रहे हैं हम लोग? 0. अगर इसको मैं 0 मान के चल रहा हूँ बेसिकली राइट नाउ, सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट P क्या बनेगा? देखो राइट नाउ, सो इट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू योर capital Q small q divided by 4 pi into your epsilon naught.
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या है, U इज इक्वल टू V इंटू की। सो यहाँ पर मैं वो पॉइंट रख रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर Q इंटू पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये स्मॉल q और ये स्मॉल q चले जाएगा। सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय योर R। R कहाँ चलेगा, यहाँ पर D लिखना था ना बेसिकली, सॉरी। 1 by 4 pi epsilon naught R भी लिख सकते हैं या D भी लिख सकते हैं, because the small r is nothing but equal to D मान के चलो। So that will be equal to your dr or whatever it may be. So electric potential at a point D will be equal to point P will be equal to how much for me? 1 by 4 pi epsilon naught into Q by D. Clear है सभी को ये? Yes, sir. Isn't it? तो एक इलेक्ट्रिक पॉइंट एक फील्ड के अंदर, अगर ये फील्ड नहीं होता तो क्या पोटेंशियल डिफाइन करते हैं आप? कभी डिफाइन नहीं कर सकते। पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए ये फील्ड होना जरूरी है, अगर फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी इस फील्ड में कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं मैं बेसिकली, वो पॉइंट P पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? 1 by 4 pi epsilon naught कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल d। एक तो एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब मोर देन 2-3 चार्जेस है, समझो। जब क्या करोगे, V इज इक्वल्स टू जस्ट समेशन कर देना, 1 by 4 pi epsilon naught into summation of all the charges of ith particle by distance of your ith particle relation। क्लियर है? समेशन क्या करना है बेसिकली, अगर एक से दो से ज्यादा चार्जेस है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। V इज इक्वल्स टू V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus go on for the given condition। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1 by 4 pi epsilon naught Q by D। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1 by 4 pi epsilon naught कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अगर एक से ज्यादा चार्जेस है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर लेंगे इस तरह से, V is equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus so on up to Vn तक जाएंगे बेसिकली। We go on and do the summation। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो बेसिकली, find electric potential at center वो फर्स्ट वन। ये डायग्राम ऐसे दे रहा हूं, मान के चलो एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल Q, यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल Q, यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल Q, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है और ये भी डिस्टेंस D है। तो कौन सा ट्रायंगल बना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना बेटा? Yes, sir. हाँ कि नहीं बना? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो कितने पेयर्स बना सकते हैं उसमें, जल्दी से बताओ कितने पेयर्स बना सकते हो पोटेंशियल के? ये सेंटर वो है, सो पोटेंशियल एट वो इज इक्वल्स टू कितने पेयर बना सकते हो? अरे मैं इससे पहले एक फॉर्मूला बोला ना बेटा, नंबर ऑफ पेयर्स बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल्स टू n into n minus 1 by 2। कितने चार्जेस है? 3 into 3 minus 1 by 2 कितने बने? 3। हाँ, तो 3 पेयर्स बनेंगे ना। तो V1 plus V2 plus V3। अब इन दोनों के बीच में चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इन दोनों के बीच में भी चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, इन दोनों के बीच में भी चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो क्या पूरे पोटेंशियल सेम होंगे कि नहीं होंगे? सेम होगा। तो ये हो गया 3 times of V, लिख लो। Hello, good morning, sir. Asif, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। Hello. कौन बोल रहा है? Sir, this is Vijaya, ma'am. Can I have, sir, can I have recording permission, sir? I'd already given it to Fariha and Asif, ma'am, and it is not showing right now with me with you. Okay, you have given permission to Asif, sir, na? Yeah, I have given to the Asif and Fariha also is doing it. It is okay, sir. If you would have given Asif, sir. हाँ. Okay, चलो, thank you. Okay, thank you, Find sir. the electric potential at the center वो बेटा, तो पूरे potential charges same है, distance भी same है, then at the point वो all the potentials will be the same, so V1 plus V2 plus V3 will be same, so this will become for me 3 times of V। अब इन दोनों के बीच में potential निकालो basically। So from this point to this point, I need to calculate from this point to this point, then from this point to this point, then from this point to this point। In equilateral triangle, you know that the distance from one corner to the center कितना बनेगा बेटा? कोई बता सकता है?
d by root 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्नर कितना हो जाएगा d by root 3, तो ये भी हो जाएगा d by root 3। तो पोटेंशियल बताओ, यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना बनेगा, v is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q divided by r। so this r is equals to how much here, d by root 3। तो इसको यहाँ पर डाल दो, पोटेंशियल v नॉट इज इक्वल्स टू 3 इंटू दिस वन इज 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q divided by r। r value is nothing but of your d by root 3, so this will go up, so this is nothing but root 3। बना? Clear है? Yes, sir. What is answer right now? This one is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught into 3 root 3 q divided by your small d is the potential at point वो। आया करने, समझ में आया? फिर से एक बार बतलाऊं। समझ में आ गया सर। क्लियर है ना बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोग 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, द सेंटर डिस्टेंस से लेके कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r by root 3 या d by root 3। सेंट्रॉइड से लेके एक कॉर्नर के इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिस्टेंस कितना होता है, d by root 3। तो पोटेंशियल यहां से यहां तक करना है मेरे को, ये पॉइंट चार्ज q के वजह से पॉइंट वो के पास पोटेंशियल कितना है, 1 by 4 pi epsilon naught into q by r, 1 by 4 pi epsilon naught q by r, 1 by 4 pi epsilon naught q by r। तो सेम है पूरे, तो ऐड कर लिए, तो v naught is equals to 3v। so v naught is equals to 3 into 1 by 4 pi epsilon naught root 3 q divided by d। so simplify, you will get the answer for that। clear for everyone? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन भी देख लो एक बार जल्दी से। अगर 4 चार्जेस आर बीन केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ योर स्क्वायर, तो पोटेंशियल एट द सेंटर वो क्या होगा। ये मान के चलो चार्ज क्यू है, ये मान के चलो 2q है, ये मान के चलो 3q है, और ये मान के चलो 4q है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है मान के चलो दिस वन इज √2 into d, दिस डिस्टेंस इज आल्सो √2d। तो ये √2d है, तो ये भी √2d है, और ये भी √2 into d है, और ये भी √2 into d है, और दिस इज अ पॉइंट 4। चलो जल्दी से करो, कितने पेयर्स बन सकते हैं पहले ये बोलो। 6 6 पेयर्स बनेंगे, और ये हो गई ये पॉइंट चार्ज q, पॉइंट वो के वजह से ये डिस्टेंस r कितनी होगी, कोई बता सकता है क्या? ये √2d है, √2d है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये कितना बनेगा पूरा, अरे बाबा ये √2d है, ये √2d है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, 2d होगा ना। Yes, sir. तो ये पूरा 2d हो गया है, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, d। यहाँ से D. यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, d। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, d के बराबर हो गई। यस सर। ठीक है ना? तो पोटेंशियल v नॉट इज इक्वल से कितने पेयर्स बनेंगे, पूरे 6 पेयर्स। ओके चलो पहले बताओ कितने 6 पेयर्स बनेंगे एक एक कंडीशन पे, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, इट सेंटर ही ना, सेंटर पे क्या 6 पेयर बना सकते हो आप, सेंटर पे कितने पेयर्स बना सकते हो, 4 पेयर्स ही बना सकते हो बेटा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, 2q q 4q q 3q 3q। हम लोग q 3q के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एट वो के पास अगर करना है तो कितने पेयर्स बन सकते हैं, 2q का एक पोटेंशियल बनेगा, कैपिटल Q का एक पेयर बनेगा, 4q का एक पेयर बनेगा, 3q का भी एक पेयर बनेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर पहले कैपिटल Q का ले रहा हूँ मैं बेसिकली, तो ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught into q by r, r की वैल्यू हो गई d, प्लस ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught into नेक्स्ट चार्ज है 2q, डिस्टेंस हो गई उसकी भी d, plus 1 by 4 pi epsilon naught into this one is 3q divided by d, plus 1 by 4 pi epsilon naught into 4q divided by d। तो अब बताओ जल्दी से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं इसके अंदर, पूरा 1 by 4 pi epsilon naught अगर कॉमन चले गया तो बचा कितना, ये पूरा d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, r वैल्यू और d वैल्यू इज इक्वल टू r, जो भी करना है वो कर लो बेसिकली, प्रॉब्लम नहीं है। तो सबकी डिस्टेंस d हो गई, तो सब ऐड हो रहे हैं ना, a q a 2q a 3q a 4q, पूरा ऐड करो तो कितना हो गया बताओ जल्दी से, ये हो गया q by d प्लस ये हो गया 2q by d प्लस ये हो गया 3q by d प्लस ये हो गया 4q by d। d को भी अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये बन गया मेरे पास 1 by 4 pi epsilon naught into ये 3 3 6 6 plus 4 10, ये हो गया 10q divided by d, ये हो गया पोटेंशियल एट वो। आया सभी को? यस सर।
So potential at your center कितना बना 1/4 pi epsilon naught into 10 into q divided by your small d. बना सभी को? क्लियर है बेटा? Yes, sir, clear. चलो ये क्वेश्चन बेटा बता जल्दी से. If identical charges, if identical charges minus q are placed at each corner of a cube of side B, then electric potential energy of charge plus q which is placed at center of cube will be dash. इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं 8√2 q square divided by 4 pi epsilon naught into b. सेकेंड ऑप्शन है -8√2 q square divided by 4 pi epsilon naught into b. और थर्ड ऑप्शन है -4√2 q square divided by pi epsilon naught into b. And fourth option is -4 into q square divided by √3 pi epsilon naught into b. क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो जल्दी से. If identical charges बोला उसने, if identical charges minus q are placed at each corner of a cube of side B, then electric potential energy, he is asking potential energy of a charge plus q which is placed at the center of the cube will be equal to how much? So let us try to first draw the diagram right now. So for the cube, if I am taking this one as of your cube right now, ठीक है. So this is a cube, each of side how much beta? B. So this is B, this one is B, everyone is B, and we are keeping the charge of how much right now for me? Minus q. So here it is right now for me, one charge I am taking, this one is nothing but minus q. Here the charge is minus q, here the charge is minus q, here the charge is minus q. At every corner the charge what we are keeping is minus q like this. Over totally how many charges right now? How many charges beta? At four corners, 4, isn't it? So at all the corners we are keeping the charges. Now what is telling? In the center we are having, this is somewhere here the center. At the center we are keeping a charge of your plus q. Okay. Now can anyone tell me what is the distance of this center from any corner? From any corner, if I am taking the distance right now, I hope anyone might, MPC students might have been remembered this distance, or maybe from this distance, or maybe from this distance. All the distances are for this one equal for me right now. For all the distances from all the corners will be the same. Okay. Now, so this is say for example smaller. This smaller will be equal to how much beta? √3b by 2. In a cube, the distance from the center to any corner will be equal to how much for me? √3b by 2. Now he is asking the energy. So how many number of pairs I can make beta? N is equals to n into n minus 1 divided by your 2. Totally how many charges have been kept? 1, 2, 3, 4. This one is 5, 6, 7, 8. Isn't it? Totally how many charges right now? How many corners are there beta? 1, 2, 3, 4.
isn't it? This one is 5, 6, 7, 8, 9, 10. Front one 11 and 12. So how many charges will be getting right now? Can you tell me how many number of pairs I can get? कितने pairs बन 7. सकते हैं? हाँ बेटा. 7 pairs. कितने? 7 pairs. सेंटर पे से एक सेंटर से एक चार्ज है 1. This one is 2. This one is 3. This one is 4. Isn't it? This one is 5. This one is 6. This one is 7. This one is 8. 48, sir. क्या? Pairs. नहीं बेटा. Sir, वो 8 है ना, तो 8 into 8 minus 1. हाँ 8 into 8 minus 1 divided by 2 ना. हाँ 28 pair. कितने बनाएंगे? 28. Identical charges minus q are placed at the each corner of a cube of side of your B. The electric potential of the charge plus q at the center of the cube will be equal to your how much? कितना आ रहा आंसर? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा देखो. Identical charges minus q are placed at the corners of your cube of side of your B. Then each electric potential energy plus q which is being placed at the center of the cube will be equal to your how much? कितने pairs बना सकता हूँ मैं? $28 आ रहा सर. 28 ही आ रहा नहीं. हाँ सर 28 आ रहा. इन दोनों के बीच में एक पेयर बनेगा. इन दोनों के बीच में एक पेयर बनेगा. 28 आ रहा. इन दोनों के बीच में एक पेयर बनेगा. हम्म 28 बने तो इसमें ऑप्शन कुछ भी मैच नहीं हो रहा ना. 8 रूट 2 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एक पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8. सॉरी नंबर ऑफ पेयर्स 28 ही बनेंगे बेटा. लेकिन हम लोग के फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है देखो, क्योंकि विद सेंटर ले रहे हैं ना हम लोग. ऑलरेडी दो चार्जेस के बीच में पूछ रहा है. एक एक कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा हुआ है ना, तो सेंटर से हम लोग को नंबर ऑफ पेयर्स बनाना है. इस रेड चार्ज जो मैंने लिखा है ना, इससे चार्जेस इसके साथ पेयर्स बनाओ. कितने पेयर्स बन सकते हैं देखो. एक कॉर्नर से एक पेयर बनेगा, एक कॉर्नर से एक पेयर बनेगा, ऊपर वाले से एक, इससे वाले, यानी ऊपर कितने बने? 4. ठीक है ना. नीचे वाले 4. पूरे कितने बने? नंबर ऑफ पेयर्स. नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 8. हम लोग जो n इज इक्वल टू n into n1 में निकाल रहे हैं,
वो खाली उन दो सभी के बीच में राइट ना क्यू और क्यू के सभी के बीच में निकालने के लिए वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग दो चार्जेस के बीच में निकाल रहे हैं, तो वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आई कैन टेक द नंबर ऑफ पेयर्स फ्रॉम दिस वन। क्यूब के सेंटर में अगर एक चार्ज रख दे तो इस चार्ज से ये चार्जेस कितने पेयर्स बना सकते हैं, बेसिकली कितने पेयर्स बना रहे हैं राइट ना, 8 पेयर्स बना देंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास √3 इंटू बी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेसिकली देखो कितना आ रहा, ये क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बन गया, ये बन गया 2 1 जा, ये बन गया 2 2 जा। तो ये कितना हो रहा है देखो बेसिकली प्लस माइनस माइनस, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो, ये तो एक चार्ज के लिए है ना, तो इंटू 8 कर दो इसको बेसिकली इंटू 8। अगर इंटू 8 कर दिया तो ये गया 2 1 जा, ये गया 2 4 जा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है देखो 4, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। एनर्जी का फॉर्मूला U इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इनटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय √3 बाय 2। वैसे कितने नंबर ऑफ पेयर्स है मेरे पास, 8 नंबर ऑफ पेयर्स है, तो इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। इसको सिंपलीफाई करो, सो हाउ मच आई एम गेटिंग द आंसर राइट नाउ, U इज इक्वल्स टू ये ऊपर है राइट नाउ माइनस ऑफ 4 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस वन विल बिकम फॉर मी √3 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी। बना सभी को, निकला, समझ में आया, फिर एक बार बतलाओ। सर एक बार फिर से बताइए ना, नहीं समझ में आया। ठीक है मैं एक बार बताता हूँ, मीटिंग मैं क्लोज करके फिर स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, एंड हो रही मीटिंग, फिर से रिजॉइन कर लो ओके सभी।